آپ جانتے ہیں کہ 10ویں اور 12ویں اسکول کے رزلٹ آ چکے ہیں اور مسلم اسکولوں کے رزلٹ مایوس کن رہے ہیں. اس سلسلے میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی میٹنگیں اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا کمی رہی کہ ان بچوں کے اتنے کم رزلٹ آئے، اتنی پرسنٹیج بہت کم ہے کہ آگے کسی اچھے کالج میں یا اچھے مینجمنٹ میں نہیں جا سکتے. اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کے دل میں درد ہے، وہ اس کو بیڑے کو اٹھایا انہوں نے لے کر چل رہے ہیں. آج ہم فرائش خانہ گلی راجان میں اسد آزاد کے گھر پر موجود ہیں، جو یہاں کی RW کے سیکرٹری ہیں. ان کے ایک میٹنگ ہوئی، اس سلسلے میں ڈاکٹر شاہد صاحب کی صدارت میں میٹنگ ہوئی تھی کہ آخر بچوں کے رزلٹ اچھے کیسے کی جائیں. تو آپ یہ یقین جانیے کہ آپ لوگ اسکول کو بہتر چلا سکتے ہیں. یہ بالکل طے شدہ. آپ وہاں جائیں گے، آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے ایڈمنسٹریشن، میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری چیزیں. یہاں جو ہمارے خلیل صاحب ہیں، معاف کیجیے گا، بہت شاندار آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی شخصیت کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی عہدے کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. تو عہدے کے حساب میں اور ان کی شخصیت کے حساب میں تضاد ہے. تو وہ اس اسکول کو اپنا کارخانے کی طرح چلا، ان کو ٹیچنگ کا تجربہ نہیں ہے. ٹیچنگ میں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں ان کو تجربہ نہیں ہے. اب یہ بات ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے لازمی طور سے قرار دی ہے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹیچنگ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کا تجربہ بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن اور ٹیچنگ کے سارے تجربات ہیں، آپ کے پاس کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں، اور نہیں بہت سارے لوگ موجود ہیں، سر جیسے موجود ہیں، اور آپ کے اسکول میں بہت سارے ٹیچرس ہیں، وہ لوگ موجود ہیں. وہ آئیں گے، ایڈمنسٹریشن کس طرح سے چلتا ہے وہ لوگ آپ کو کام کریں گے. آپ یقین جانیے جب آپ کی ایک سوسائٹی اور آپ متحد ہو کے کام کریں گے تو آپ کے پاس یقینی طور سے ہر آدمی ہوگا، ایڈمنسٹریشن کا آدمی بھی ہوگا، ٹیچنگ کا آدمی ہوگا. جو ٹیچرس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹیچرس کی کیا پریشانی ہے. اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے اور وہ ٹیچر نہیں ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا ٹیچر کی کیا پریشانی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک غیر شادی شدہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اولادوں میں کیا پریشانیاں آتی ہیں. شادی شدہ ماں باپ جانتے ہیں کہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں. اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے آپ یقین جانیے جو ٹیچر نہیں ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا، یا تو اس کو بتایا جائے. اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے جیسا مطلق العنان اور میرے جیسا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ اس ادارے کو خراب کرتا ہے. ہمارے مثال انڈیویجول لے لیجیے، مظہر اسلام کے جو صدر صاحب ہیں وہ کسٹم میں شاید آفیسر رہ چکے ہیں. میں شخصیت کی بات کر رہا ہوں، میں عہدے کی بات کر رہا ہوں. جی کسٹم میں رہ چکے ہیں، وہ کسٹم میں رہ چکے ہیں. تو اب ان کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ تو ہے لیکن ٹیچنگ کا تجربہ نہیں ہے. وہ سمجھنا ہے کہ ٹیچنگ مطلب ایڈمنسٹریشن سے نہ ٹیچنگ سے. تو یہ یقین جانیے کہ آپ کو آلٹرنیٹ ایڈمنسٹریشن دینا پڑے گا، تب آپ آگے قدم بڑھائیں گے. آپ کو اپنے ٹیچرس کو ٹریننگ دینی پڑے گی. ایڈمنسٹریشن کے ٹیچرس کو بھی آگے لانا پڑے گا. کہیں کہیں آپ کو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو بھی آگے لانا پڑے گا. تو ان کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ٹیچنگ یہ ہوتی ہے. جو ایڈمنسٹریٹر آئیں گے ان کو ٹیچنگ بتانی پڑے گی، جو ٹیچنگ آئیں گے ٹیچر آئیں گے ایڈمنسٹریشن بتانا پڑے گا. یعنی آپ کے پاس ایک مکمل ادارہ ہے. آپ لوگ کوشش کیجیے، کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم متحد ہو کے کریں گے. اور آج ہماری ضرورت ہو گئی ہے کہ ہم اس کو آگے چلائیں. اس کے بغیر ہماری قوم کا کیا حال ہوگا ہم تصور کریں، کیونکہ حکومت وقت کے پاس انتہا سے زیادہ انٹیلیجنٹ افراد ہیں اور ان کے ذہنوں میں ہمارے خلاف شاید کوئی باعث ہیں اور وہ ہمارے خلاف آہستہ 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 پالیسی سامنے. اس لیے آج ہمیں عصری تعلیم کی ضرورت ہے، آج ہمیں دینی تعلیم کی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم آہستہ آہستہ. جیسے کہ جب سے میں شاہد صاحب کی سرپرستی میں آیا ہوں تو مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ کورسز ہیں، اب ہمیں وہ بتانے ہیں بچوں کو. جیسے کہ ہمارے بچے جو پڑھائی میں کمزور ہیں، جو 10ویں 11ویں 12ویں پڑھ کے چھوڑ دیں، اب ان کو کرنا کیا چاہیے. اب یہاں ایک بڑی پرابلم، اب وہ 10ویں 12ویں پڑھنے کے بعد وہ کوئی کام کر کے راضی نہیں.
पहले क्या होता था, बच्चे अगर नहीं पढ़ते थे वो दुकानदार के हाथ में हाथ दे देता था, गोश्त हमारा हड्डियाँ, तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी का पानी बढ़ जाता था, वो एक लायक आदमी बन जाता था और उसने अपने घर का पूरा खर्चा उठाया, बहनों की भी शादी की, छोटे भाइयों की भी शादी की। और आज हमारे इस माशरे में बहुत बड़ी खराबी है ये पैदा होती है, इससे तालीम ना होने की वजह से। दूसरा, जो अनएजुकेटेड है वो काम नहीं कर रहे। अब उन बच्चों को हमने करना क्या है, जैसे कि आपके पास है, हजरत के पास जो कोर्सेज हैं उसमें मैकेनिज्म भी होगा, वो मैं चाहता हूँ कि उनको ITI कराएगा। जैसे कि मेरे पास एक लड़का था, मैंने उसको बताया बेटा जामिया जा, एक ITI कोर्स कर, और उसने किया और फिर उसकी मारुति सुजुकी में नौकरी लगी। आज वो दुआ देता है, संतोष नाम था उसको। अब मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, अपनी कौम के बच्चों से कहता हूँ कि सिविक सेंटर में लिफ्ट चलाने वाले को 9,600 रुपये मिलते हैं, सिर्फ लिफ्ट चलाने 8 घंटे के। आप जब कारखाने में 4,000 में अपनी ज़िंदगी वक्त कर देते हो, वो छोड़ जाते हैं माँ बाप, वो बफिंग करे या कुछ भी करे या लिफाफे फूटे या कुछ भी करे, वो करता है, वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको गाइडलाइंस नहीं मिल रही। वो गाइडलाइंस भी हमें देनी होगी। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तो हमारे माशरे में, क्योंकि हम इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, उनके पास सारी सुविधा है, वो अपनी पॉलिसियाँ लेके चलते हैं। 25 लाख का कोर्स करना है, कोई डिप्लोमा करना है या 2 लाख का करना है, या वो सारा उनको हमारे पास नहीं। आपने तालीम में तो जोड़ दिया, अब ज़िंदगी की आसानियों में जोड़ रहा। जैसे कि हजरत के पास जो मैं पीछे जो मीटिंग हुई थी हमारी जो फील्ड हुई में, तो आपने भी कहा था कि मैकेनिज़्म के अंदर हमें इन बच्चों को लाना हो। नहीं पढ़ रहे आप, ठीक है, ये करो। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हमारे स्कूलों में से, तमाम स्कूलों में से बॉल सीडिंग स्पोर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हो गया, और इस स्पोर्ट्स की बल पे हमें इतनी नौकरियां मिली हुई हैं कि 2-4 तो आप भी गिनवा देंगे, हर आदमी गिनवा देगा। स्पोर्ट्स के बिहाफ पर कितनी नौकरियां मिली हुई हैं लोगों को, जल बोर्ड हो, MTNL हो, MCD हो, सबको मिली। अब स्पोर्ट्स ज़ीरो है। स्पोर्ट्स के लिए मैंने जब जैसे बात आई है, उसकी जो चेयरमैन है वो खुद स्पोर्ट्स कोटे से है, और 25 साल में कोई बच्चा स्कूल से स्पोर्ट्स कोटे में नहीं गया, स्पोर्ट्स में नहीं गया। बड़े सोचने की बात है, फिक्र की बात है कि चेयरमैन साहब स्पोर्ट्स कोटे से हैं और उनके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स की दिलचस्पी नहीं है बच्चों में। ऐसा क्यों हो रहा है? और इसी स्कूल में नहीं, तमाम बालसिटी के स्कूल जो हैं जिसमें स्पोर्ट्स जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। जैसे कि हमारा एंग्लो स्कूल था, उसमें स्पोर्ट्स कोटा हमारा बहुत अच्छा था, फुटबॉल हमारे पास ग्राउंड भी है, पर वहाँ से भी कोई बच्चे जो हैं हमारे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं ले रहे। अगर इलाके के कोई बच्चे जाते हैं तो उनको भी नहीं खेलने दिया जाता, तो फिर ये दिलचस्पी कैसे बनेगी? स्पोर्ट्स कोर्स में आना पड़ेगा, और इसके लिए एक बेनिफिट ये भी है कि बच्चे अर्ली मॉर्निंग हमारे सुबह उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे रात को दिन बना रखा है, दिन को रात बना रखा है, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। और मैं तमाम अपने जो इलाके के दर्दमंद लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों में अवेयरनेस लाएँ कि जल्दी सोएं रात में, और सुबह स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। अपने स्कूलों में भी जो है स्पोर्ट्स में ज़्यादातर हिस्सा लें, ताकि आपकी तंदुरुस्ती रहे और इस धूमपान से भी बचेंगे आप अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। जैसे कि मैंने दंगल वाला पार्क जामा मस्जिद पे, जहाँ से बच्चे नेशनल खेले हैं, जब मुझे ये पता चला, छागो पहलवान के लड़के जो हैं आकिल साहब, उनसे मुझे पता चला, तब मैंने जाके कोशिश करी और वो दंगल वाले पार्क में जो बाज़ार लगता था उसको खाली कराया। ND शर्मा साहब जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने उस पार्क को खाली कराया, और उनको जब मैंने बताया कि आप नेशनल पैमाने पे यहाँ के बच्चे रेसलिंग खेला करते थे, आप इस पार्क को बनवाइए। तो हमें अपने बच्चों को रेसलिंग में लाना है, बॉक्सिंग में लाना है, जिम्नास्टिक में लाना है, और ये सारी सुविधाएँ जो हैं स्कूलों में होनी चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स लगनी चाहिए। अब सरकार जो है ओपन जिम्स जो है पार्कों में लगा रही है, तो मैं उनसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि स्कूलों के अंदर भी इस तरह का शुरू होना चाहिए सिलसिला, स्पोर्ट्स के अंदर हमारे बच्चों को डालना चाहिए, और ताकि बच्चे जो हैं हमारे स्पोर्ट्स के अंदर भी आगे हों, तालीम के मैदान में आगे हों, और हम भारत को गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडलों से भी ज़्यादा भारत का नाम रोशन कर सके पूरी दुनिया में। शुक्रिया। मैं अब्दुर्रहीम फ़िक्र शाहजहानाबाद से। जिस तरह से पिछले दिनों CBSE के जो रिज़ल्ट हैं वो मायूस कुन आए हैं, ख़ास तौर से हमारे एडेड स्कूलों के, उसी सिलसिले में आज हम मज़हरुल इस्लाम स्कूल की एक फ़िक्र को लेके गली राजान फराश खाने में असद आज़ाद साहब जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमने गुफ्तगू की, और यहाँ के स्कूल की जो
मायूस कुन रिज़ल्ट थे, उस सिलसिले में हमने उनसे तहकीक की और कुछ बातें की जिससे कि आइंदा इस स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर हो। हम लोग पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे और इस स्कूल के बारे में कुछ बातें हमारे सामने आई जिसमें स्कूल का मयार, स्कूल का रिज़ल्ट पेश था और इस साल भी इस स्कूल के रिज़ल्ट ने हमें मायूस कुन किया। कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने असद आज़ाद साहब से दरख्वास्त की और एक आज यहाँ मीटिंग मुनक़िद की और किस तरह से आगे का लाइन ऑफ एक्शन हो, किस तरह से सभी लोग मिलकर इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन तैयार करें, हम उसके लिए साथ हैं और हमने अपना भरपूर ताउन देने की पेशकश की है असद आज़ाद साहब को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कम्युनिटी के सभी लोग इंशाल्लाह स्कूलों की फ़िक्र करेंगे और इस स्कूल को दोबारा उसी मयार का बनाएंगे जैसा इस स्कूल का एक दौर था। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में लोग आए, लोगों ने गौर फिक्र किया है कि इस सिलसिले में क्या है। जब आज़ाद साहब के घर पर मीटिंग हुई और आर्ट अब्दुल के हवाले साहब सेक्रेटरी में और मोहम्मद सलाम से भी आप लोगों ने, तो अब जो लोगों ने ये राय जाहिर की है, इसमें आपका क्या कहना और आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि मीटिंगें आगे बढ़ना चाहिए, जैसे यहाँ से आज शुरुआत हुई है तो अगले हफ्ते कहीं और मीटिंग होगी, उससे आगे कहीं और होगी, लोग जुड़ते जाएंगे। इसी तरह गौर फिक्र करते हुए तो आपका आगे क्या था, पहला कदम क्या है? जैसा कि यहाँ पे आज लोगों के घर में भी मीटिंग हुई, तो यहाँ पे ओल्ड वाइज लोग भी जो मजहर इस्लाम स्कूल के अंदर बैठे हैं, पढ़े हैं, तो वो लोग भी यहाँ शामिल हैं। और जो यहाँ शामिल मजहर इस्लाम स्कूल से मुताल्लिक नहीं थे, जैसा कि बाहर से लोग आए, जैसे दरियागंज के, जामा मस्जिद के, काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए एजुकेशन के मामले में। तो जो उनकी राय है, मैं उससे जो है उनकी बातों को ध्यान से सुना और मैं उनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया कि ये आगे कार्रवाई बढ़ाना चाहिए, ये मेरे तक ही महदूद न रहे, इसको आगे लेना चाहिए। और जैसे ये मीटिंग हुई है और ये बेदारी हुई है, वो इसी तरह आगे भी चलती रहे और इसके अंदर इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। जैसा कि मजहर इस्लाम स्कूल में इस टाइम जो वाल सिटी में है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो वो सारी जिम्मेदारी चेयरमैन की है। मैं चाहता हूँ कि उस चेयरमैन से मिला जाए, एक डेलीगेशन, उनसे भी मुलाकात की जाए और उस डेलीगेशन के बाद अगर कोई वो तवज्जो नहीं देते, इन 25 सालों से जब वो चेयरमैन बने हुए हैं और स्कूल ख़त्म होता गया है, आज उनको 25 साल के अंदर 10 बच्चे स्कूल के अंदर 10th क्लास में थे, जो 8 पास हुए, 2 की कंपार्टमेंट आई, और अभी तक पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ 4 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि 4 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और वहाँ का प्रिंसिपल झूठ बोल रहा है कि यहाँ पे हर सेक्शन के दो सेक्शन बन गए। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मजहर इस्लाम के चेयरमैन साहब कि आपने क्या 2 बच्चों के सेक्शन बनाए? मेरा कहने का मकसद ये, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप उनसे पूछिएगा, डेलीगेशन ले जाइए, क्योंकि तालीम का मामला और उनको जवाब देना भी पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हमें इस बात के बारे में भी सोचना कि घर वालों का क्या रोल है, माँ बाप का क्या रोल है। उस स्कूल में जो 4 बच्चे ही क्यों, आपके या आपके पड़ोस में आप जब यहाँ रहते हैं, तो इस हवाले से भी आप लोगों को बेदार कीजिए, कब एडमिशन करिए, आप जाइए। देखिए, बच्चों का जो है, बच्चों के पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई, तो जो पहले की कंप्लेंट्स थी मैंने उनको इस बारे में समझाया, तो वो कहने लगे हमने जाके वहाँ बात करी तो हमको जो है डरा दिया गया। तो पेरेंट्स का कहना है कि हमें डरा दिया गया, तो इसलिए हम आपके साथ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं। नहीं, आप तो उसमें नए एडमिशन भी तो कराएं। अच्छा, उसमें नए एडमिशन के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमसे सिर्फ सवाल ये किया कि जिस स्कूल के अंदर मैनेजमेंट नहीं है, टीचर नहीं है, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो हम उस बच्चे को वहाँ पे कैसे एडमिशन करा दें। तो ये देखिए, ये थे लोगों ने गौर फिक्र किया, इनका फिक्र सिर्फ एक ही है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। अब आप फतेहपुरी को ही लीजिए, फतेहपुरी का क्या हाल है, आपके सामने हमारे ग्राउंड नहीं है। अगर हमारे पास ग्राउंड है, एकमात्र स्कूल ऐसा है इंगलौर भी जहाँ हमारे पास ग्राउंड है, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन वो उसके हालात आप देखेंगे तो कैसे बनते हैं।
इतने बड़ा असासा होने के बाद भी स्पोर्ट्स कोटे में भी हम पी रहे हैं। पहले जो लोगों की नौकरी, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे हमारे जो स्पोर्ट्स कोटे में, बिजली में, रेलवे में बहुत जगह लगे हुए थे, कोई क्रिकेट में, कोई, और उनके एडमिशन भी स्पोर्ट्स कोटे में होते थे। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे हाथ में दुनिया मुट्ठी में कर रखी है मोबाइल, और मोबाइल के आगे कुछ नहीं दिखता। हम कहीं भी जाके देखें, हमारे हर गली हर मोहल्ले में हमारा बच्चा मोबाइल लिए बैठा है। पुलिस में भी जाना पसंद है, पुलिस की ड्यूटी होती है। अगर हम कहीं बागपत, बड़ौद या मेरठ के रोड पे जाना चाहते हैं तो वहाँ देखेंगे सुबह जो जवान दौड़ता हुआ नज़र आता है, और वो दिल्ली पुलिस में आता है। जबकि दिल्ली के लोगों का हक है दिल्ली पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो इस बात को पता नहीं किस नकार से देखते हैं। दिल्ली पुलिस में अरे दिल्ली पुलिस में हो गए, कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, SH हो गए, ऐसे भी तक आप पहुँच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सीधा डायरेक्ट IAS बने। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तब्दील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।